کرسچن گاؤں نہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ بہرحال افسوس ان لوگوں پر، افسوس ان لوگوں پر جو ان حالات میں بھی دعا اور روزے میں نہیں ہیں۔ ٹیریبل ہیں وہ لوگ جو ان حالات میں بھی کلیسیا کے لیے اور پرسیکیوٹڈ کرسچنز کے لیے دعا نہیں کر رہے اور روزے میں نہیں ٹھہرے ہوئے، روزے میں نہیں ٹھہر رہے۔ بائبل میں ان حالات میں دعا نہ کرنے کا مطلب بائبل کہتی ہے کہ گناہ ہے، اٹ از اے سن، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی عدالت ہوگی۔ یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، آئی کین پروو آؤٹ آف بائبل، لیکن ابھی آج ٹاپک کچھ اور ہے۔ لیکن ایسے حالات میں دعا نہ کرنا اور روزہ نہ رکھنا، جو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں تو وہ گناہ کر رہے ہیں، اور ان کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمیں کسی پادری کا جواب نہیں دینا پڑے گا، ہمیں کسی اپنے رشتہ دار کا جواب نہیں دینا پڑے گا، ہمیں اس چیز کا جواب دینا پڑے گا کہ میں نے ان حالات میں کتنی دعا کی اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اور کتنے روزہ رکھے۔ اور ان حالات میں جو لوگ دعا کرتے ہیں، ریممبر خدا کا اپنا وقت ہے جواب دینے کا۔ بائبل مکاشفہ میں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بائبل مکاشفہ میں یہ لکھا ہے کہ خدا اپنے وقت پر جواب دیتا ہے، لیکن ان تمام مقدسین کی دعائیں خدا تک پہنچتی ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ تمام مقدسین کی دعائیں جو خدا تک پہنچی وہ مذبح پر انڈیلی گئیں۔ سو جو لوگ اس وقت دعا اور روزہ میں ہیں، ان کی دعائیں خداوند تک ہیں، اور خداوند ان کے نام یاد رکھتا ہے، اور خدا اپنے وقت پر ان کی دعاؤں کو ریئلائز کرتا ہے، جواب دیتا ہے، اور خداوند اس کا ان کی دعاؤں کا ریوارڈ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو ہم اگرچہ روح القدس اور پاکیزگی کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس ہفتہ بھی میں تھوڑا سا اس کو لنگر آن کروں گا، نیکسٹ ویک دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم میسج کی طرف جائیں، ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اور ہم خاص طور پر جڑا والا لوگوں کے لیے اور تمام پاکستان میں، ہمیں کسی اور ملک کے ساتھ کوئی فی الحال ہم اپنا گھر جلا ہو تو ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سو ہم پہلے پاکستان کے لیے دعا کریں گے، اور ان مسیحوں کے لیے جو اس وقت ایمنس عذاب رسانی سے گزر رہے ہیں، پاسبان کے لیے جو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ سو ہم سب آج جو ہم کھڑے بغیر کوئی وقت ضائع کیے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ مقدس مرکز کی انجیل، آج میرا ہم روح القدس اور پاکیزگی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آج اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی، اس کو پھر مے بی کسی اور ویک میں ہم دیکھیں۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 9واں باب، اور اس کی 17ویں آیت سے خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا، اور وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے، اور وہ کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوکھتا جاتا ہے، اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا کہ وہ اسے نکال دیں، مگر وہ نکال نہ سکے۔ اس سے جواب میں ان سے کہا، اے بے اعتقاد قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ پس وہ اسے اس کے پاس لائے، اور جب اس نے اسے دیکھا تو فی الفور روح نے اسے مروڑا، وہ زمین پر گرا، کف بھر لا کر لوٹنے لگا۔ اس نے اس کے باپ سے پوچھا، یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟
اس نے کہا بچپن ہی سے، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے کے باپ نے فی الفور چلا کر کہا، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اسے کہا، آئے گونگی بہری روح، میں تجھے حکم دیتا ہوں اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو۔ اور وہ چلا کر اور اسے بہت مروڑ کر نکل آئی اور وہ مردہ سا ہو گیا، ایسا کہ اکثروں نے کہا وہ مر گیا، مگر یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ گھر میں آیا تو اس کے شاگردوں نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے۔ اس نے ان سے کہا، یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ سو ایون دو ہم لوگ روح القدس اور پاکیزگی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، لیکن آج پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نہیں آج اس کے بارے میں کریں گے، کیونکہ تھوڑی سی مجھے اور چیزیں اس کے بارے میں اسٹڈی کرنی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کلام دیا جائے ہمیشہ دعا اور تیاری کے ساتھ کلام دینا چاہیے۔ جب ہم تیاری کے ساتھ کلام نہیں دیتے ہیں، پریپریشن نہیں ہوتی ہماری، ہم صرف اگر آ کر کھڑے ہو جائیں تو اس سے ایک تو ہم کلیسیا کا وقت ضائع کرتے ہیں، اور اسپیشلی ہم خدا کا وقت ضائع کرتے ہیں اور خدا کی بلاہٹ کو ضائع کرتے ہیں اگر ہم دعا اور تیاری کے بغیر میسیجز دیں، کیونکہ خدا نے یہ پلپٹ دیا ہے، پتہ نہیں آج دیا ہے، کل شاید یہ پلپٹ ملے یا نہ ملے، کل موقع ملے یا نہ ملے۔ سو ہمیشہ جب میسیج دیں دیانتداری سے دیں، وہ بات کریں جو کلام میں ہے، دعا کے ساتھ کلام دیں، اور ہمیشہ تیاری کے ساتھ، پریپریشن کے ساتھ۔ سو میری جو تیاری ہے وہ ابھی تھوڑی سی انکمپلیٹ ہے، جو میں نے سرمن دینا ہے روح القدس اور پاکیزگی پر، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا ہولڈ کیا ہے۔ برا ہم نے جو خداوند کے کلام میں سے یہ دیکھا کہ ایک نوجوان کو اس کا باپ خداوند یسوع کے پاس لایا، اور جب اس کے شاگرد، پہلے وہ شاگردوں کے پاس لے کر گیا، لیکن جب اس کے شاگرد ناکام ہو گئے تو وہ نا امید نہیں ہوا۔ جب اس کو رزلٹ نہیں ملا تو وہ ناکام ہو کر چلا نہیں گیا، he stayed there. He stayed there. Perseverance. ناکامی، نا امیدی should not make you to quit things. نا امیدی اور مایوسی سے شکست کھا کر ہمیں لوٹ نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں نا امیدی اور مایوسی کو فیس کرنا چاہیے۔ جب وہ اپنے شاگردوں کے پاس لے کر گیا، ہم بہت سارے لوگ اسی لیے
अपने मौजज़ा को और अपने विजन को नहीं ले पा सकते, क्योंकि वो बहुत जल्द वो क्विट मोड में आ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। हालेलुया। सो उसका बाप उसको, जब वो एक जगह से, लेकिन वो वहां से गया नहीं, बैठा रहा, फिर उसको लेकर गया, फिर खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर गया। और आप बाइबल में जितने भी मौजज़ात देखें और बारहा, उसमें सबसे बड़ी चीज आपको जो नजर आएगी, परसेवेरेंस, कायम रहना, अपने गोल के पीछे रहना, अपनी विजन से नहीं हटना। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फेस फेलियर, जितनी मर्तबा भी आप गिरे, जितने मर्तबा भी आप नाकाम हो, फिर उठें, ट्राई अगेन, फिर उठें, ट्राई अगेन, फिर उठें, ट्राई अगेन। अगर आपकी दुआ का जवाब आपको नहीं मिल रहा, हार गए हैं, थक गए हैं, आप जिस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, हालात आपको बद से बदतर नजर आ रहे हैं, स्टैंड अगेन, स्टार्ट प्रेइंग अगेन। हालेलुया। सो वो खुदावंद यीशु के पास उसको लेकर आए। जब वो खुदावंद यीशु के पास लेकर आए, अब क्या हुआ? और जब यीशु ने, यहां पे लफ्ज उसने लिखा है, लेकिन मैं उसको चलें, जब उसने यानी यीशु ने उसे देखा तो फिल्फ और रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। जब भी आप इब्लीस की डोमिनियन को, इब्लीस की हुक्मरानी को आप चैलेंज करेंगे, वो हालात पहले से ज्यादा आपके लिए बदतर कर देगा। अभी भी हम इंसान, अभी जो आप अपने इर्द गिर्द के हालात देख रहे हैं, पॉलिटिकल हालात देख रहे हैं, इंसान अपनी अथॉरिटी के लिए कहां से कहां तक जा सकता है, क्या से क्या कर सकता है, कहां से कहां गिर सकता है, सिर्फ इसलिए कि एक इंसान की अथॉरिटी ना खत्म हो। आप ये सोचें कि इब्लीस जब आप किसी इंसान पर, जब आप अपनी फैमिली पर, जब आप अपनी जिंदगी पर उसकी अथॉरिटी खत्म करने लगते हैं, तो वो किस हद तक जाकर आपसे लड़ता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग मेरी पास्टरल लाइफ में, मेरी पासबानी जिंदगी में आकर मुझसे ये कहते हैं, आपने कहा था कि दुआ किया करें, आपने कहा था रोजा रखा करें। जब से हमने दुआ शुरू की है, जब से हमने रोजा रखा है, हमारे हालात बदतर हो गए हैं। अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर एनी पास्टर टू आंसर। वो कहते हैं जब से हमने दुआ शुरू की है, जब से हमने रोजा रखना शुरू किया है, हालात पहले से ज्यादा बदतर हो गए। उसका रीजन यह होता है कि क्योंकि जब आपकी फैमिली में दुआ शुरू हो जाए, तो इसका मतलब, क्योंकि किसी ना किसी ने तो फैमिली में रहना है, किसी ना किसी फोर्स में ने तो रहना है। खुदावंद ने कहा कि अगर खुदावंद के पाक रूह की फोर्स नहीं होगी तो बदकार फोर्स तो वहां पे लाजमी होगी, राइट? क्योंकि उसने कहा कि जब वो जो खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील की कि जब वो एक जगह को खाली देखती है तो वो फिर खुद आती है वहां पे वो कुआं। लेकिन जो जगह जहां पर दुआ रोजा होता है, वहां पर बदकार फोर्सेस नहीं होती, क्योंकि खुदा का रूह उस घराने पर, उस फैमिली में, उस जिंदगी में हुक्मरानी कर रहा होता है। हालेलुया। So, once you challenge the satanic forces,
the battle will get intense. आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी जॉब लाइफ में, एजुकेशनल लाइफ में, वो फोर्सेस जो आपको शिकस्त देना चाहती हैं, डिसहार्टन करना चाहती हैं, जब वो अपने बेटे को मसीह के कदमों में लाया, वो और ज्यादा मुसीबत में आ गया। जब खुदावंद ने उसको देखा, वो शिफा नहीं पाई उसने, वो और भी ज्यादा लौटने लगा। बिकॉज समथिंग इज गोइंग टू हैपन नाउ, अब कुछ होने वाला है अनकरीब। सो उससे पहले इब्लीस अपनी पूरी कुव्वत दिखाएगा। हालेलुया चर्च, आप बाइबल का मुताला करें। इस्राएल बड़े आराम से थे, बड़े आराम से मिस्र की गुलामी में थे। जब उन्होंने मुखलसी की बात की, रिहाई की बात की, फराऊन ने उनकी मुसीबत को बढ़ा दिया। बिकॉज नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉमिस लैंड। अब वो रिहाई की बात कर रहे हैं, अब वो मुखलसी की बात कर रहे हैं, और बात यहां तक पहुंच गई कि उनको अपने बेटे छुपाने पड़े। हालेलुया चर्च, इसको कहानी ना लिया करें। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जस्ट च्यू इट। उसके वो जिस तरह एक फिलोसोफर है फ्रांसिस बेकन, उसने बड़ी एक अच्छी बात की। उसने कि जो अच्छी किताबें होती हैं उनको च्यू किया करे। उनकी वो जैसे भैंसें करती है, नई जनरेशन को तो नहीं पता होगा, वो जगाली करती है। वो खाना लेती हैं अपने मुंह में और उसको खाती रहती हैं उसी को ही। हमारे दौर में हम इतना सा बर्गर लेते हैं, खा के खत्म, हो जी मुक गया काम, राइट। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो च्यू इट। आपको वही स्टोरी जो आपने संडे स्कूल में पढ़ी है, वही आपको जब आप उस पर गौर करेंगे, जब आप उस पर मेडिटेट करेंगे, जब ज्ञान करेंगे, जब ध्यान करेंगे, तो वो आपको एक डिफरेंट स्पिरिचुअल मीनिंग देगी। वही बात, वही चीज। जब उन्होंने मुखलसी की बात की तो बात यहां तक पहुंची कि इनके बेटों को मार दो। बिकॉज नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉमिस लैंड। खुदावंद यीशु मसीह जमीनी खिदमत में इंसान की हैसियत से जब उसने बपतिस्मा लिया, रूह से जंगल में ले गया। खुदावंद यीशु मसीह की जिस्मानी जिंदगी, बदनी जिंदगी बियाबान में सख्त मुश्किल में आ गए, और इब्लीस ने उसके वीक पॉइंट्स पे, बॉडी के वीक पॉइंट्स पे हिट करना शुरू कर दिया। 40 दिन का भूखा एक शख्स, 40 इतने दिनों से भूखा शख्स, उससे कहा अगर तू कहे तो ये रोटियां बन जाएं। स्टार्टेड हिटिंग है कि यहां पे इसकी टेम्पटेशन है, यहां पर ये टेम्प्ट होता है, तो इस बॉडी को यहां पर मुझे हिट करना चाहिए, गिराने के लिए। जब क्योंकि अगर वो बदन वहां पर गिर जाता तो तमाम दुनिया की मखलसी और इब्लीस की हुक्मरानी कायम रहती। सो डेविल विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू फेल यू, ताकि आप अपने गोल और अपनी विजन से हट जाएं। हालेलुया। और यही नहीं, जब वो 40 दिन पूरे हो गए तो का कलाम में लिखा है कि इब्लीस ने कुछ देर के लिए उसको छोड़ दिया। इब्लीस ने कुछ देर के लिए उसको छोड़ दिया ताकि फिर आजमाया जाए। जब भी आप, और यूसुफ
जब उसके बाप ने उसको कोट ऑफ कलर्स दिया, उसको खास बुलाहट दी, जब खास उसको बुलाहट दी, तो उस वक्त उसकी मुसीबत में और उसकी आजमाइश में उस वक्त इजाफा हुआ। देखें, जब उसके बाप ने खास उसको कोट दिया और उसको खास उसको अपना मनपसंद बेटा कहा, उसके बाद उसके भाइयों ने उससे नफरत करना शुरू की। सो बैटल विल स्टार्ट जैसे ही आप अपने चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, अपनी मखलसी की तरफ बढ़ेंगे, वहां से जंग का आगाज हो जाएगा। हालेलुया। एलिया जब उसने बाल के पुजारियों को शिकस्त दी, पालूस जब तक वो साउल था उस वक्त तक उसका स्टेटस था, लेकिन जैसे ही वो पालूस बना, जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट बना कि खुदा का कलाम तमाम कौमों तक पहुंचाए, खुदा उनके कलाम में देखे उसके साथ क्या हुआ। दूसरा करंथियों उसका 11वां बाब, थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था, अभी कोई आया था इस वजह से। दूसरा करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत। बल्कि 23वीं आयत, क्या वही मसीह के खादम है? मेरा यह कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर हूं, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बार बार मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात समंदर में काटा। मैं 12 सफर में, ना दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, बार बार बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आ दबाती है। जब पालूस, क्योंकि पालूस को गैर अक़वाम का रसूल कहा जाता है, और पालूस रसूल के बारे में यह कहा जाता है कि बाइबल कौमों तक ना पहुंचती अगर पालूस रसूल ना होता। सो जब अबलीस को पता चला कि नाउ ही इज गोइंग टू ब्रेक द शैकल्स, ही इज गोइंग टू ब्रेक द बैरियर्स, ही इज गोइंग टू डू समथिंग which will be miraculous, which is extraordinary, तो अबलीस हमेशा आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, to disappoint you, to dishearten you, to defeat you, to make you hopeless. Hallelujah. Church, this battle is going to go intense. ये और भी ज्यादा सख्त होने जा रही है।
اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ پراسپیرٹی گاسپل آپ کو سکھائی ہے کہ اسپرچل لائف میں آ جائیں تو ہر جگہ بوٹے ہی بوٹے ہون گے, ہر جگہ ہریالی ہریالی ہوئے گی, تو انہیں غلط دسیا تانوں. کیونکہ پالوس کہتا ہے ہم نہیں جانتے کہ ہم کیسے ہوں گے, لیکن جیسا مسیح تھا ہم ویسے ہوں گے. اگر خداوند یسوع مسیح پرفیکشن میں اور اس کی مصیبت میں اتنا اضافہ ہوتا گیا تو واٹ ڈو یو تھنک؟ لیکن ہماری نظر ہمارے حالات پر نہیں ہوتی ہے, ہماری نظر ہمارے گول پر ہوتی ہے. مسیح اپنے حالات پر خداوند سے قوت مانگتا ہے, لیکن اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہے. ہلیلویا. ڈیول از سیریس اباؤٹ ہز اتھارٹی, اور وہ ہر اس حد تک جائے گا جس حد تک اسے جانا پڑے تاکہ وہ اپنی اتھارٹی پر کمپرومائز نہ کرے. میرے ساتھ کلام ہے, دیکھیں, میں نے آپ کو کہا دا بیٹل از گوئنگ ٹو گو ایون مور انٹینس. دانیل اس کا 10واں باب, دانیل اس کا 10واں باب, اور اس کی 13ویں آیت. پھر فارس, 12ویں آیت, تب اس نے مجھ سے کہا آئے دانیل خوف نہ کر, کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے, تیری باتیں سنی گئیں, تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. پھر مکائل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا, اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا. پر اب میں اس لیے آیا ہوں جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے تجھے اس کی خبر دوں, کیونکہ ہنوز یہ رویا زمانہ دراز کے لیے ہے. 18ویں آیت. تب ایک اور جس کی صورت آدمی کی سی تھی آ کر مجھے چھوا اور مجھ کو تقویت دی, یہ دانیل کہہ رہا ہے, اور اس سے کہا آئے عزیز مرد خوف نہ کر, تیری سلامتی ہو, مضبوط و توانا ہو. اور جب اس نے مجھ سے یہ کہا میں نے توانائی پائی اور کہا آئے میرے خداوند فرما, کیونکہ تو ہی نے مجھے قوت بخشی ہے. تب اس نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں؟ اور اب میں فارس کے موکل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں, اور میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا. چرچ آپ اسپرچل بیٹل میں ہیں, چرچ فیملیز آپ روحانی جنگ میں ہیں. آپ میں سے ہر ایک شخص روحانی جنگ لڑ رہا ہے. اینڈ اٹ از ناٹ اے جوک. فارس کے موکل سے میں لڑا ہوں, میں تیرا جواب لے کر آ رہا تھا, لیکن مجھے فارس کے موکل نے روک لیا, اور اب میں جاتا ہوں, لیکن اب یونان کا موکل آئے گا. ریممبر چرچ, ابلیس کی جو کنگڈم ہے وہ بہت زیادہ, کیا اس کو کہتے ہیں, پلیز کلوز دا ڈور, کلوز دا ڈور, کلوز دا ڈور. اوکے, جو ابلیس کی مملکت ہے وہ بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہے, وہ بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہے. وہ
उसने हर मुल्क पे अपने मोकल मुकर्रर किए, हर शहर पर, हर खानदान पर, हर फर्द पर गुनाह तुम्हारे दरवाजों पर दबका बैठा है कि कब तुम पर गालिब आए। The moment you show your weakness, the devil overcomes you. Hallelujah. इस वक्त मसीही दुनिया में, और सिर्फ दो ही दुनिया हैं दुनिया में, एक मसीही दुनिया एंड द फोर्सेस ऑफ एंटी क्राइस्ट, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। और जो चर्च वाले समझते हैं कि चलो हम दुआ नहीं कर रहे हैं, चले, लेकिन हमारा दिल तो दुखता है। बाइबल में लिखा है जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। या तो आप जमा करने वालों के साथ हैं या आप बखेरने वालों के साथ हैं। देयर इज नो मिडल ग्राउंड। हम दुआ नहीं कर रहे, रोज़ा नहीं रख रहे, लेकिन हमें गुस्सा तो आता है, तो देन यू आर अ स्कैटरर। आप बखेरने वाले लोगों में से हैं, आप जमा करने वालों में से नहीं हैं। बाइबल में दो ही कैटेगरीज हैं, ब्लैक व्हाइट, देयर इज नो ग्रे एरियाज। हालेलुया चर्च। जब भी आप डेविल की फोर्सेस को ललकारेंगे वो आपके खिलाफ, अगर आप डेविल की फोर्सेस को नहीं ललकारते, अगर आप अपनी फैमिली के लिए प्रेयर नहीं करते, फैमिली में प्रेयर नहीं करते, इब्लीस को आपसे कोई सरोकार नहीं, आप बहुत पुरसकून है, पुरसकून रहेंगे। लेकिन द मोमेंट आप प्रॉमिस लैंड की तरफ जाएंगे, आप अपने बच्चों की डिलीवरेंस के लिए दुआ करेंगे, उनकी मखलसी के लिए दुआ करेंगे, उनकी रिहाई के लिए दुआ करेंगे, आप किसी भी प्रॉमिस के लिए दुआ करेंगे, आप बाइबल रीडिंग शुरू कर देंगे, आप जो भी करेंगे, द फोर्सेस ऑफ एंटी क्राइस्ट अब्लीसी कुव्वतें आप पे हमलावर हो जाएंगी और ये जंग शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। और ये जंग उस वक़्त तक शिद्दत इख्तियार रखेगी जब तक आप शिकस्त मान नहीं लेते, जब तक आप गिर नहीं जाते, और जब तक आप अपनी विजन को, अपनी रोया को आप छोड़ नहीं देते। हालेलुया चर्च। और जब ये जंग होती है तो सबसे ज़्यादा जो टेम्पटेशन होती है उसको कहते हैं टेम्पटेशन ऑफ डिस्करेजमेंट। आप एक वो जो आयत हमने देखी, ये टेम्पटेशन ऑफ डिस्करेजमेंट क्या है? जो हम मरकस का जो पहला हवाला था, मरकस उसका 9वां बाब, और उसकी 26वीं आयत। जब यीशु ने देखा 25वीं आयत कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं, तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, आए गूंगी बैरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। खुदा यीशु ने हुक्म दिया, अब हुआ क्या? वो चलाकर और उससे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया है। बदरू ने निकलने से पहले अपनी फाइनल अथॉरिटी का भरपूर मुजाहरा किया। जब ये जंग का आगाज होता है, जब आप अपने वादा को, अपने मौजा को लेने के लिए दुआ में बैठते हैं, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस शुरू होती है। आप दुआ नहीं छोड़ते, इट गेट्स इंटेंस, वो और ज़्यादा हो जाती है। जब आप अपने वादा को पाने के करीब होते हैं तो बाइबल में लिखा है कि वो उसको ऐसा उसने मरोड़ा कि वो ऐसा लोगों ने समझा कि ये तो मर गया है। लोगों ने कहा खुदावन यीशु मसीह ने ओदी बदरू की करनी सी, इन्हों तो मार ही छड़िया खुदावन यीशु मसीह की दुआ ने। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं तो हमारी तो पहले तो हमने कभी इतनी प्रॉब्लम्स देखी नहीं थी जितनी अब देख रहे हैं। बिकॉज द मोर क्लोजर यू गेट टू योर प्रॉमिस, द मोर फियर्स
your enemy comes. Remember this law. और आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आप कभी डिस्करेज नहीं होंगे। आपको मालूम होगा कि ये लड़ाई, ये जंग जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, ये रूहानी कुव्वतें हैं जो आपके खिलाफ खड़ी हुई हैं। आप पर्सनली आपके खिलाफ, आपकी फैमिली के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, आपकी कौम के खिलाफ, आपके मसीही पाकिस्तानियों के खिलाफ। और this is called the temptation of discouragement. क्योंकि जब आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, उन्होंने कहा हमें मिस्र वापस जाने दे। The temptation of discouragement. बहुत सारे लोगों ने टेम्पटेशन ऑफ डिस्करेजमेंट, मायूसी की आजमाइश के सामने अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा हम नहीं वादा के मुल्क, छड़ वादा के मुल्क, सानू वापस मिस्र भेज। उर्फा ने कहा I'm going to give up in the battle of discouragement. रूथ ने कहा I'll go till the last moment. उर्फा ने कहा I quit. रूथ ने कहा जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग। ऐसा ना हो कि मौत के सिवा कोई और चीज मुझे तुझसे जुदा करे। हालेलुया चर्च। यही पौलुस कहता है, कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। यही शागिर्द जो मसीह के साथ रह गए। 70 ने कहा कि इन्हें तो सानू कोई बादशाह बूदशाह देनी कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 70 ਜਿਹੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ कोई काम ही नहीं हो रहा, वो सब छोड़ गए। और खुदावंद यीशु मसीह ने बाकियों से कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो? उन्होंने कहा हम किसके पास जाएं, जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। इट शोज द रेशो। 70 शागिर्द थे टोटल। इट शोज द रेशो कि इस डिस्करेजमेंट की टेम्पटेशन के आगे कितने लोग हथियार डाल देंगे और कितने लोग कायम रहेंगे। कितने लोग डिस्करेजमेंट, द टेम्पटेशन ऑफ डिस्करेजमेंट, जब आपकी स्पिरिचुअल वॉर का स्टार्ट होता है और जब आपकी जंग का इंटेंस लेवल आता है, हाइट पर जाती है, कितने लोग कहेंगे यस वी क्विट, वी गिव अप, वी गो बैक, और कितने लोग कायम रहेंगे। ये रेशो है। बाइबल आपको आने वाले दिनों की रेशो भी बताती है। बाइबल रेशो ये बताती है कि 13 लाख से ज्यादा लोग मिस्र को छोड़े और उनमें से सिर्फ चंद लोग, बल्कि 2 लोग, उनमें से पुरानी जनरेशन में से सिर्फ 2 लोग थे जो वादा के मुल्क में दाखिल हो सके। इट शोज द रेशो। इट शोज द रेशो कि कितने लोग हैं जो उस बुत के आगे सजदा करेंगे, जो 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 टेम्पटेशन ऑफ डिस्करेजमेंट है, और कितने हैं जो उस बुत के आगे नहीं झुकेंगे और अपने ईमान में कायम रहेंगे। वो सिर्फ आपको 3 लोग नजर आते हैं, सदरक, मीसक और अबदनजू। दैट्स इट। हालेलुया चर्च। लेकिन जब आप कायम रहते हैं तो खुदा एट द एंड यू बिकम विक्टोरियस। फाइनली
इस तमाम चीज़ों से गुजरने के बाद फातेह वो हैं जो खुदावंद में कायम रहते हैं। हालेलुया चर्च। इस तमाम सिचुएशन से गुजरने के बाद, हर मुसीबत के बाद, हर आजमाइश के बाद वादा का मुल्क इस्राएल को मिला। मौत पर फातेह खुदावंद यीशु मसीह ठहरा। मिस्र का हुक्मरान यूसुफ ठहरा। एलिया खुदावंद को रूबरू देखने वालों में से ठहरा। और पालूस उस आसमान तक उठाया गया जिसकी बातें वो हमसे बयान नहीं कर सकता। हालेलुया चर्च। अगर हिम्मत ना हारें, खुदावंद के कलाम में लिखा है लूका 18वां बाब की पहली आयत में, दुआ करते रहो और हिम्मत ना हारो। और इस जगह पे आखिर में जब शागिर्दों ने खुदावंद से पूछा हम क्यों नहीं निकाल सके, हम क्यों नहीं निकाल सके, उसने कहा, खुदावंद ने कहा, दुआ के बगैर ये किस्म नहीं जा सकती। एंड रिमेंबर, वो शागिर्द थे। अगर शागिर्द भी प्रेयरलेस लाइफ गुजारते हैं तो खुदावंद उनकी जिंदगियों के जरिए से काम नहीं करता। हम इतने साल, आप शागिर्द कहला सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह के, लेकिन और मीडिया गिमिक्स भी आप खेल सकते हैं, फॉल्स गवाहियां भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन खुदावंद असल काम उसी वक्त करेगा जब आप दुआ में ठहरेंगे। एंड फैमिलीज, जब तक आप दुआ और रोज़ा में नहीं ठहरेंगे, ये किस्म, ये जौन सी भी किस्म है, ये आपकी फैमिली से जुदा नहीं होगी। इट विल, ये आपको तबाह कर देगी, लेकिन ये आपकी फैमिली से जुदा नहीं होगी। हमारे पर एज ए क्रिश्चियन, हम जिस जंग में इस वक्त आ चुके हैं, हमें तलवार उठाने से मना किया गया है, लेकिन और हम गुस्से से भरे होते हैं। उस गुस्से का हम इजहार कई तरीकों से करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, कभी किसी के खिलाफ बात करके। ये हमारा अपना गुस्सा होता है, ये हमारा पर्सनल गुस्सा होता है, ये दरअसल हमारा दुख होता है जो हम कई एक मर्तबा सामने लेकर आते हैं। लेकिन इससे ज्यादा दुख इब्तदाई कलीसिया ने सहा है, और उस दुख में भी वो उन्होंने कुर्बानी दी और गालिब आए हैं। लेकिन उस दुख पर गालिब आने का एक ही तरीका था। बाइबल में लिखा है, चर्च वॉज प्रेइंग पैशनेटली। कलीसिया दुआ और रोजा में ठहरी हुई थी। सो आई डोंट नो आप अपनी स्पिरिचुअल बैटल और अपनी रूहानी जंग की कौन सी स्टेज में हैं। अगर तो आप कोई रूहानी जंग में नहीं है तो आप बड़े पुरसकून बैठे हैं, लाइफ इज गुड, हालेलुया, लाइफ इज गुड। लेकिन अगर आपकी पर्सनल लाइफ में, अभी मैं जो भी बात करूंगा मैं पर्सनल लाइफ से और फैमिली से, चर्च से और तमाम मसीह कौम को एज वन रख के बात करूंगा। अगर तो आपको बाइबल वगैरह नहीं पढ़ रहे, दुआ नहीं कर रहे, तो आप किसी जंग का हिस्सा नहीं है। यू आर अ पार्ट ऑफ द सैटेनिक फोर्सेस। आई एम सॉरी टू से, मेरा नाम जॉन जॉर्ज हो सकता है, मेरे वालदैन क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन आई एम वन ऑफ द स्कैटरर। मैं बखेरने वालों में हूँ, जमा करने वाले में नहीं हूँ। मैं नीम गर्म हालत में हूँ, और शायद मुझे खुदावंद यीशु अपने मुंह से निकाल फेंक चुका हुआ है या निकाल फेंकने को है। आई एम एट दैट स्टेज। सेकेंड स्टेज, जब आप अपनी फैमिली में और अपनी ज़िंदगी में प्रेयर का स्टार्ट करते हैं, सो ये बैटल स्टार्ट होने लगी है, क्योंकि अब आप अपने बच्चों को अबलीस से छीनने लगे हैं, आप अपने घर को अबलीस से छीनने लगे हैं, अब आप अपनी कम्युनिटी को अबलीस से छीनने लगे हैं, और वो नहीं जाने देगा। वो लड़ेगा, वो जंग करेगा, वो कभी फारस का मोकल भेजेगा, वो कभी यूनान का मोकल भेजेगा, वो कभी बच्चों पर हमलावर होगा, वो हर तरीके का आपके साथ मुकाबला करेगा। वो कभी
किसी शक्ल में आएगा, वो कभी किसी शक्ल में आएगा। वो कभी जिन लोगों को तारीफ़ें बड़ी पसंद होती हैं कि वो उसने हमारी ये तारीफ़ की, उसने हमें ये कहा, वो कभी दलाला की शक्ल में आएगा, कभी किसी शक्ल में आएगा, लेकिन he will come after your deliverance, he will come after your freedom, he will come after your anointing। और अगर आप कायम रहे, अगर आप कायम रहे, अगर आप कायम रहे, अगर आप अपने ईमान से बिखरे ना और आप उसमें कायम रहे, वो अपनी बैटल को और इंटेंस करेगा, वो और ज़्यादा बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी कायम रहे तो फाइनल फतह खुदावंद आपको देगा। जो लोग जॉब पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपने जॉब पे जाएं, बैठकर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है चर्च में, कभी आपके साथ शेयर करूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कामयाबी को भी देखा है अपनी जॉब लाइफ में, और मैंने इंटेंस नाकामी को भी देखा है अपनी जॉब लाइफ में। मैंने सिर्फ कामयाबी को नहीं देखा, मैंने नाकामी को भी देखा है। एंड आई कैन से, जब आप अपने जॉब पर जाकर बैठे, जब आप जाकर ऑफिस में बैठें और पहला काम आप ये करें, मैं कॉलेज स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, स्कूल स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, अपने पास छोटी पॉकेट बाइबल रखें। काम शुरू करने से पहले आप, अगर आपके ऑफिस में टाइम है, मुझे वो वक्त याद है कि बहरहाल मैं नहीं दोहराना चाहता, बहरहाल कम से कम 1 चैप्टर पढ़ें, दुआ करें, और आप, खुदावंद आपको वहां पर सरफराज करेगा जहां पर एक्सपेक्ट भी नहीं आप करते। प्लीज डू दैट। खुदावंद आपकी जिंदगी में मिरेकल्स करने को है। और जो फैमिलीज इस चीज को फेस कर रही हैं, प्लीज स्टार्ट प्रेइंग, प्लीज स्टार्ट। आप बैटल के फाइनल विक्ट्री इज योर्स। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों। आए जिंदा खुदावंद, चित्ते लोग तेरे हुजूर सरनगू हैं, चित्ते लोग तेरे हुजूर सजदारेस हैं। खुदावंद, मैं इस तमाम कलीसिया के लिए और जितने ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं, खुदावंद, ये अपनी रूहानी जंग के जिस मरहला में भी हैं, तो इनको कायम रहने की कुव्वत है, इन्हें कायम रहने की कुव्वत है। जब इब्लीस अपने हमलों को बढ़ा दे, ये उतना ज्यादा अपनी दुआ को इंक्रीज करें, और जो कर सकते हैं वो अपने रोजों की रूटीन को भी ज्यादा करें। खुदावंद, मैं मसीह कौम के लिए दुआ करता हूं। ये कलीसिया, खुदावंद ने आपको अभी तक मौका दिया है, अभी तक आप पर कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन आप उन लोगों के लिए जो इस वक्त मुसीबत में हैं, आप उनके लिए मखलसी का बाइस बनेंगे उस वक्त जब आप दुआ और रोजे में ठहरेंगे। खुदावंद, हम हमेशा इस आयत को अपने दिमाग में रखें, हमें दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। खुदावंद, जितने लोग कलीसिया में बीमार हैं, हर एक के लिए तुझसे दुआ करता हूं, नाम बनाम एक एक फर्द के लिए। तमाम बदन के मुतासरा हिस्सों पर तेरा पाक खून चाहते हैं। हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की कमजोरी, हर किस्म की तकलीफ, हर किस्म का दर्द इसी लम्हा, इसी वक्त तेरे यीशु नाम में जाता रहे मेरे खुदा। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।